Hello everyone, this is Omkant Thakur. I have secured All India rank 52 in UPSC Civil Services Examination 2019 through the medium of DKT, as you all know, the Delhi Knowledge Track. I will be sharing my UPSC Civil Services strategies regarding GS and Geography optional. So basically, a brief background I would like to say that I have done schooling from Bihar board in Hindi medium, and then after that I have done my schooling and graduation in English medium and BTech from NIT Patna in computer science and engineering, and then I have worked also in Bangalore. After work I was not doing means I have to do civil service, but I was working, so I was not able to do justice with the job and not preparing well with the UPSC. So I left the job and came to Delhi to prepare for civil service examination. At that time there was no help from any side, no senior, no one, only my elder brother was there to guide me. So finally I decided that okay, I will join the coaching, and coaching gave me some mentorship that helped me, but I failed in 2016 attempt. So then I realized that just only doing coaching and just only following some toppers won't work. Then I assessed myself, known my strength and weaknesses, I analyzed, I overhauled my whole plan, and then in 17 I secured All India rank 396. In 2018 exam I secured All India rank 252, and in 2019 exam you all know that I secured 52 rank. So how I improved my ranks and what should be the strategy for UPSC civil services? Basically, when any aspirant, I would say anyone, whoever is topper right now, he was a new aspirant someday. So he was confused, he was not known to the UPSC, what should be read, what should be not read, what is the syllabus, what is relevant, what is irrelevant. So basically it comes to a point that they follow some topper. So just like any other topper, and there are many videos from DKT or any other channels, you would be watching many toppers. So just one addition into that, so you would be saying that means it may be confusing to you, but some of the people who are basically you know that they want to do the same kind of strategy they want to follow with my strategy, then it will be really somewhat it will be helpful. So I will go bilingual somewhat, because from UP Bihar side, from where I belong, many people are preparing in Hindi medium also. So I would like to think that whatever I am going to explain, it will be bilingual, so that it will help both kind of aspirants who are appearing in Hindi as well as in English medium. So coming to the point now, for GS, either it is prelims or mains, you have to see the syllabus first, and basically you have to divide your whole structure, whole plan in a structural manner. That's what it is called strategy. What we call in Hindi, it is Ranniti. So for a war we prepare a Ranniti, right? It's like a war. You have to prepare a strategy, like at what time, what should be finished, what should be read, what should be not read. So that's the main concern every aspirant has. So prelims has only the 7 pillars. You don't have to deviate from that. You see the syllabus, you will see the 7 point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and it is history, art and culture, polity, geography, environment, economy, science and tech, and current affairs. And for each of that you need a certain set of books, NCRTs, and certain set of books. That's it. You don't have to go anywhere or any other topic. Some guide it will be helpful, like you have to do at least 50 or 60 tests for prelims, so that to test yourself, like how much are you getting in your prelims test. That is the best plan, and you have to test yourself in the test kind of environment. So mind you that test is not a reading material. You have to read from the books and test yourself from the test paper, and test should be given in the time bound manner, just like the exam. So basically coming to the point for the prelims,
you have history, art and culture. There you can read 6th to 10th new NCERT. Then for 11th 12th you go for old NCERT, and you revise old NCERT multiple times for the exam, at least 3 or 4 times, and see how you work in or how you perform in test series. That will be helpful. और अगर हिस्ट्री के लिए इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट यू विल गो थ्रू द रीडिंग द ओनली न्यू एनसीईआरटीज, देन माइंड यू दैट न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्लास 11th और 12th के लिए बनाई गई हैं. तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी much data and facts are not there which should be there as a competition point of view. तो वो एक हट जाना चाहिए. Second, after history you come to the art and culture, actually a part of history. I always read it as part of history. जब मैं ancient पढ़ रहा हूँ तो I will go through the Buddha, Jainism, everything together, their architecture, ancient architecture together. Similarly, while I was studying medieval, you will have to go to medieval architecture, the Mughal architecture, everything together. Many people read it and think it as a separate thing, but it's not. It's a part of the socio-cultural fabric of at that time in the historical context. So you have to understand that point. For art and culture मैंने 11th की NCERT, न्यू NCERT, एंड नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है TMH की, वो है, बट इट इज़ अ थिक बुक. यू हैव टू एक्चुअली गो फॉर द टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एंड वही सिलेबस में जो दिया है उसी से आपको करना है. हिस्ट्री हो गया. जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे उनके लिए आई विल बी टॉकिंग अबाउट शेड्यूल लेटर. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट 3 थिंग्स विच यू हैव टू फिक्स. One is the book list, another is the schedule, and third is your routine. So I am talking about book list right now for prelims book list. Now coming to the second point. Second is polity. For polity, you read, if you are a first timer and you haven't read NCERTs since long, and so you have to read NCERT once for 6th to 10th. Take some points if it is worthful for exam point of view and syllabus point of view. Then you read multiple times 11th and 12th NCERT, all new. Then you read Lakshmikant. So basically Lakshmikant is the Bible for clearing prelims as well as I think mains also. I will be explaining the mains strategy later on. So you see that for polity, Lakshmikant, if you read 4 times, it is good. You read cover to cover, just left aside some appendixes. It's very good book. Many toppers recommend it. You don't have to deviate to any other book for polity. And then current, of course, you have to keep on update with the currents, which I am going to talk about later. तब हम आते हैं ज्योग्राफी पे. Geography was my optional, so I am not like perfect kind of guy to suggest you, because geography में मेरे always अच्छे marks आते थे. Because of the optional, it helped me. Geography में आपको basically पढ़ना है 6 to 12 तक की NCERT, all new. For old NCERT, you can go either 6, 7, 8 old NCERT or 11, 12th old NCERT. Okay, 6 to 10th जो है वो 1 या 2 बार पढ़ के you have to take the gist out, and then 11, 12th ही बार बार रिवाइज करना है. You have to focus on atlas also for India map basically, and world map also, like what island is in which ocean, or which ocean is surrounded by what countries. You have to make some mnemonics. अगर पॉसिबल होगा तो ये जो DKT की लिंक अगर बाद में शेयर होगी आप लोगों के साथ यूट्यूब पे, आई विल बी शेयरिंग माई नोट्स, माई स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग इन डिटेल देयर. Because of the time paucity, I cannot talk much in length. So you can see how I prepared notes for prelims, how I prepared notes for mains. That will be, I think that will be helpful a bit. Now coming to the fourth point. Fourth pillar for prelims is environment. Every people read environment from most of the guy. I think 99% people read Shankar IAS environment. It's very good book. Or you can go to any coaching book which gives you a complete compilation from your syllabus. But before reading Shankar IAS, you have to read NCERT Unit 4 12th class ecology. वो जब आपका कवर हो जाएगा, देन एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की भी बुक आती है. ये पतली सी एक चैप्टर है, 11th या 12th में है, पता नहीं, मैंने बस जेरोक्स करा के निकाल ली थी. दैट यू ऑल्सो हैव टू रीड. इट्स वेरी गुड. ओजोन के बारे में उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, और आपने शंकर कर ही लिया है. प्लस करंट में क्या चल रहा है ये बहुत ज़रूरी है. तब आते हैं हम इकोनॉमी पे. इकोनॉमी मैंने NCERT पढ़ी 9, 10th, 11, 12th, टुक द जिस्ट आउट. 12th में आपको माइक्रो इकोनॉमी नहीं पढ़नी है, माइंड यू. बहुत लोग पढ़ते भी होंगे, बट माइक्रो इकोनॉमी नहीं पढ़नी है, कभी क्वेश्चन नहीं आता उससे. मैक्रो इज़ वेरी गुड.
Then you have to, I actually did Murnal org, that website he used to run, and YouTube पे उनकी लेक्चर थी, इकोनॉमी इज़ वेरी गुड, बेसिक से समझाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं इकोनॉमी। मुरनाल इज़ वेरी गुड। देन टू मास्टर ऑन इकोनॉमी यू हैव टू रीड श्रीराम IAS इकोनॉमी, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। श्रीराम IAS बहुत रिकमेंडेड है, उनके कोचिंग की मटेरियल इकोनॉमी की स्पेशली बहुत अच्छी है, उनसे करके आप नोट्स निकाल लें। बार बार आपको उतनी मोटी बुक्स को फिर से रिवाइज करना नहीं पड़ेगा, आप जो रिलेवेंट है वो निकाल लें। नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी भी मैं लिंक पे शेयर कर दूंगा, यू कैन गो थ्रू कि नोट्स बनाते कैसे हैं। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि मैं शुरू में खुद में कंफ्यूज था 2016 में 15 में, नोट्स कैसे बनाऊं, पेपर का नोट्स बनाऊं क्या, या फिर कैसे नोट्स निकालूं। तो ये आपको पहले रीडिंग में नोट्स नहीं बनाते हैं, पहले रीडिंग में समझते हैं, सेकेंड रीडिंग करते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं। तो वो एक पॉइंट है, आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अब आते हैं साइंस एंड टेक। कुछ नहीं है, 6 to 10 तक का आप NCERT कर लें, दैट्स द बेसिक थिंग एंड दैट विल कवर मेनी पार्ट। देन यू कम टू बेसिक लाइक करंट अफेयर्स, लाइक PT 365 आती है विजन की, या फिर आप अगर मंथली भी पढ़ते हैं तो हर मंथली मैगजीन में आपका जो है एक साइंस एंड टेक का पोर्शन होता है, तो इफ़ यू कवर दैट तो वो हो जाएगा। उसके बाद करंट पे आते हैं, तो करंट इज़ द ऑल। आप अगर पिछले 3 साल का ट्रेंड देखें या 4 साल का इवन, तो करंट से काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग। तो करंट का कवरेज बेसिकली आपका 1.5 से 2 घंटा अगर आप न्यूज़पेपर रिलीजियसली पढ़ते हैं तो वो आपका तो कवर हो ही गया। उसके अलावा वो उसको मैं डेली डोज में गिनता था, इट इज़ अ डेली डोज। मतलब आप इसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हो कि कल कर लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नहीं, ये तो रोज़ छपेगा, रोज़ आएगा। तो यू हैव टू बी कि डेली डोज हो रहा है कि नहीं, डेली न्यूज़ आएगा। तो मेरा था कि खाने वक्त मैं बिग पिक्चर देख लिया, या फिर राज्यसभा TV पे न्यूज़ सुन लिया, ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ सुन लिया, कहीं जा रहे हैं चलते फिरते, और पेपर पढ़ लिया। तो एक डेली कवरेज होते रहता था कि क्या चल रहा है। इट विल कीप यू अपडेटेड क्रोनोलॉजिकली। मंथ के एंड में जो है वो मंथली मैगजीन आती है, किसी भी कोचिंग की पकड़ लो, विजन है, श्रीराम है, वाजीराम है, फोरम है, इनसाइट है, मेनी कोचिंग्स आर देयर। आपको क्या करना है, किसी एक ही कोचिंग की पिछले 1 साल की कवर करनी है फॉर प्रीलिम्स, और सेम विल अप्लाई टू मेंस ऑल्सो। तो ये सारी बातें जब आप कंसोलिडेट करोगे, इसके अलावा करंट में थोड़ी और चीज़ें हैं जो कि मैं बता दूं, जैसे कि बजट है, सर्वे है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, उसकी भी विजन की एक आती है, या किसी भी कोचिंग की गवर्नमेंट स्कीम्स की एक कंपाइलेशन आती है। प्लस मैंने नोट्स और भी निकाले थे, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वासेनार एग्रीमेंट, या फिर स्टॉकहोम, ये मॉन्ट्रियल, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन सबको मैंने एक जगह कंसोलिडेट किया था। यूनाइटेड नेशंस के कितने ऑर्गन्स हैं, कौन सा स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, कौन सा नहीं है, वेरी कन्फ्यूजिंग। तो अगर आप एक जगह नोट्स में लिख लेते हैं तो आपको आसानी होगी। इसी तरह से नेशनल कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, IB है, रॉ है, बहुत सारे नेटरिप है, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं इंटरनली, उन सब का अगर आप एक जगह कंसोलिडेट करते हैं कि कौन हेड करता है, फंडिंग कौन करता है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो ये आपको बजट, सर्वे, करंट अफेयर्स, प्लस कुछ लोग इंडिया ईयर बुक भी पढ़ते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट मच। बट अगर टाइम है और आपका प्लानिंग अच्छा है, आपके प्लान में, शेड्यूल में वो एडजस्ट हो सकता है, तो उसको भी आप स्कैन कर लें एक बार, और जो भी उसमें से नोट्स निकल पाता है निकाल सकते हैं। तो ये था प्रीलिम्स का ओवरऑल कवरेज। प्रीलिम्स पे मैं बता दूं, अगर आप फ्रेशर हैं या बार बार प्रीलिम्स में अटक रहे हैं, मैं फिर से कहूँगा, बार बार प्रीलिम्स में अटक रहे हैं और फ्रेशर हैं, तो आप कितना भी आंसर राइटिंग कर लो, कितना भी ऑप्शनल पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। प्रीलिम्स क्लियर करना मस्ट है टू क्रैक दिस एग्जाम। उसके लिए आपको एटलीस्ट 3.5 से 4 महीने डेवोट करने होंगे, क्योंकि आप बार बार वहीं फ्लंक कर जा रहे हो। और आपको अगर फॉरेस्ट के कट ऑफ से क्लियर करना है, एकदम शानदार तरीके से आपको जो है मार्क्स लाने हैं 110, 120 प्लस, तो मैं तो बोलूँगा कि 4 महीने ज़रूर दो और 60 टेस्ट लगाओ, और जो मैंने बताया वो फॉलो करो। प्रीलिम्स हो सकता है, प्लस आप 1-2 और पॉइंट किसी टॉपर से और भी कुछ मिल जाता है, तो आप सबका देखो, अपना एनालिसिस करो, फिर देखो कि व्हाट सूट्स यू एंड देन फॉलो दैट शेड्यूल। फिर उस शेड्यूल से डेविएट मत होना। ये थी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट। मेंस की बुक लिस्ट पे आते हैं। पहले हमारा पहला सेगमेंट है बुक लिस्ट का, जो हमें फिक्स करनी है, हमें दीवार पे चिपका देना है। चाहे कितनी भी अच्छी नोट्स और बुक्स और कोई भी कोचिंग मटेरियल मार्केट में आ जाए, वी शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द बुक लिस्ट विच वी हैव फिक्स्ड, बिकॉज वो आपका सिलेबस कवर कर रहा है, यू डोंट हैव टू डेविएट। नाउ मेंस पे आते हैं। आपने प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़ा है, मेंस प्रीलिम्स निकलने वाला है, तो आप GS पेपर 1 हिस्ट्री में आपने जो प्रीलिम्स में जो तैयारी करी थी उसी को रिवाइज करना है। प्लस
कोई टेस्ट सीरीज है या फिर एनसीईआरटी के एंड ऑफ द चैप्टर में क्वेश्चंस होते हैं, दैट यू हैव टू राइट, तो वो प्रैक्टिस करनी है। और एक वर्ल्ड हिस्ट्री का सेगमेंट आता है जो मैं शेड्यूल में बताऊंगा कि वो कहाँ पे पहले ही पढ़ लेना चाहिए, सो दैट कि एग्ज़ाम के बाद, प्रीलिम्स के बाद आप उस पर ज़्यादा टाइम ना दो, कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है, इसे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम्स के बाद टाइम बहुत कम होती है। स्पेशली जो 2021 में देखने वाले हैं, जो देने वाले हैं, उनको बता दूँ कि आपके पास सिर्फ 70 डेज़ है, और जो 2020 में देने वाले हैं उनके पास सिर्फ 90 डेज है। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के पार्ट हैं बट उतने नहीं पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू वे कि कितना टाइम देना चाहिए और क्या, तो वो एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वो आपको देखना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के अलावा इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, मैंने प्रधानमंत्री सीरियल देखा था, दैट्स वेरी गुड। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं तो कहूँगा आज ही पहले 1-2 दिन में प्रधानमंत्री सीरियल ही देख जाओ, बहुत अच्छा है। संविधान सीरियल देख लो, ये भी यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, और प्रधानमंत्री सीरियल भी फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद आप अब आते हैं सोशोलॉजी पे। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी सोशल की 11th-12th, और फिर बेसिक जो होती है ना, उसके लिए आप वैल्यू एडेड मटेरियल आती है, किसी भी कोचिंग की कर सकते हो, विजन की बहुत लोग करते हैं। उसके अलावा करंट बेसिकली जो सोशल इशूज़ पे जो 1 साल के मेंस 365 आते हैं ना, वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 1 साल का कवरेज होता है। तो आप अगर उनको कर लेते हो तो उसमें वीमेन, चिल्ड्रेन, एजुकेशन, पर्सन विद डिजेबिलिटी, एवरीथिंग इज कवर्ड फ्रॉम ऑल एंगल्स। सो वो अगर आपका प्रिपेयर्ड है और वेल रिवाइज है और आपने टेस्ट सीरीज दिया है तो सोशल इशूज आप कवर कर लोगे। मोटा मोटी ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है, तो कोई भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। यू हैव टू राइट समथिंग रिलेवेंट, कुछ डायग्राम बनाया, कुछ फैक्ट्स बनाया, हो जाएगा। ज्योग्राफी बाद में ऑप्शनल बट पार्ट ऑफ पेपर 1, जीएस पेपर 1। तो उसमें मैं बता दूं, आपने जो प्रीलिम्स के लिए तैयारी करी है वही है। जीसी लियोंग जो बुक है, ज्योग्राफी में प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना होता है और मेंस के लिए जो करना है उसमें आप क्या करें, डायग्राम प्रैक्टिस करें, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। उसके अलावा सबिंदर सिंह से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, वो पढ़ सकते हैं, थोड़ा आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होंगे, जैसे जियो सिंक्लाइंस है, माउंटेन बिल्डिंग कैसी होती है, जैसे आइसबर्ग्स है, कुछ थ्योरीज हैं बहुत सारे, वो थोड़ा सा आपका कवर हो जाएगा, क्लाइमेट और जियोमॉर्फोलॉजी का। पूरी बुक नहीं पढ़नी, ऑप्शनल वाले पूरी पढ़ते हैं, बट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेना है, कहीं से नोट्स मिल जाए तो वो भी अच्छा है। उसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी पोर्शन में आपको वही इंडियन मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, माइनिंग, इंडिया की फिजिकल सेटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी तो एनसीईआरटी से कवर हो जाती हैं, बट थोड़ा डेप्थ में जाने के लिए डीआर खुल्लर की सेलेक्टिवली आप अगर उस चैप्टर का किसी से जेरोक्स करा के या कहीं से निकाल लें, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ है, कुछ रोड ट्रांसपोर्ट्स हैं और डिजास्टर है, ये बहुत अच्छे से उसमें कवर्ड है डीआर खुल्लर में। वो आपका इन्वायरमेंट का पोर्शन भी कवर कर देगा। और ऐसे ऐसे डायग्राम्स हैं, माइंड ब्लोइंग डायग्राम्स हैं, वो अगर आप कर लेंगे तो वो आपको वोल्केनिज्म हुआ, लैंडस्लाइड्स हुआ, उसमें आपको बहुत फ़ायदा करेगा। फिर आते हैं हम आपको पेपर 2 पॉलिटी। पॉलिटी में क्या है कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है अच्छे से रिलीजियसली, नाउ यू हैव टू डिवोट 2-3 डेज, उसी में जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है ना उनके नोट्स निकाल लेने हैं, प्लस विजन की जो 365 आएगी साल भर की वो पढ़ लेना है, या किसी भी कोचिंग की साल भर का पॉलिटी पढ़ लेना है। प्लस थोड़े बहुत आपको जो है सिक्योर मेंस मैं करता था जनरली, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे आंसर राइटिंग करो, 2-3 क्वेश्चन आप रोज़ लिखो, तो वो आपको एक ना जीएस के आपको उसमें रखता है, फ्लो में रखता है। एंड यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर अगेन, एडिटोरियल्स एंड ऑल वेरी वेल, वो एक मोटा मोटी कवर हो जाएगा आपका। बेसिकली सारा करंट ही आता है, प्लस जो स्टैटिक आता है वो आपने लक्ष्मीकांत से उठा के उसको वेल प्रिपेयर कर लिया है। आईआर के लिए डायग्राम्स जो होते हैं, मतलब मैप्स बेसिकली, वो आप इंक्लूड करने का कोशिश करें अपने आंसर में, तो एक एडेड एडवांटेज जरूर मिलेगा। प्लस करंट से हो जाता है, मतलब मोटा मोटी जो है आपका किसी भी कोचिंग का एक आईआर का मटेरियल ले लें, प्लस करंट ले लें आईआर का 1 साल का, आपका हो जाएगा। पेपर 3 पे आते हैं, बहुत डायनामिक है, न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट थिंग, प्लस बजट एंड सर्वे, इनका आप ओरिजिनल पढ़ें। सर्वे स्पेशली बहुत लोग जिस्ट पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे कंटेक्स्ट हट जाते हैं, सीधा हमें डेटा फैक्ट्स और कुछ मिल जाता है, वो कभी कभी समझ में नहीं आता। पूरा ब्रॉड पढ़ें, फिर उसमें से जिस्ट निकालें खुद का, वेल प्लान करेंगे तो आप कर सकते हैं। बहुत लोग नोट्स पढ़ के भी निकालते हैं, बहुत लोग मेन पढ़ते हैं, मुझे नोट्स से नहीं समझ में आता था, तो आई वेंट फॉर बिग बुक, द थिक वन, फॉर इकोनॉमिक सर्वे, और उसमें ऐसे ऐसे डायग्राम्स है, ग्राफ्स हैं, बार चार्ट्स है, पाई चार्ट्स है, दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये इतने अच्छे लाइन्स हैं, दैट आई यूज टू कॉपी एंड देन उसको मैं ट्राई करता था कि आंसर राइटिंग में किसी तरह से उसको इंक्लूड करूँ, तो दोज आर वेरी गुड थिंग।
एग्रीकल्चर वाला पार्ट मैंने बोला डी.आर. खुल्लर के एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट इवन पेपर 1 में भी, पेपर 3 में भी और पेपर 2 में भी अगर कोई रैंडम क्वेश्चन आ गया तो कवर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी विल कवर द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक पार्ट ऑफ पेपर 3, वेल कवर्ड हो जाता है। उसके अलावा आप मतलब इकोनॉमी के बुक में भी अच्छे से कवर है जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है, प्लस आपका PT 360 ये मेंस 365 आएगा उसमें अच्छे से कवर हो जाएगा, तो डायनामिक कवर हो जाएगा। डिजास्टर के लिए कुछ नहीं करना है, NDRF के वेबसाइट पे जाके हर डिजास्टर का जो डिटेलिंग है वो है, प्लस आपका NCERT और डी.आर. खुल्लर जो मैंने बोला वो ज्योग्राफी की बुक है हालांकि, लेकिन उसमें से डिजास्टर वाला चैप्टर लेके पढ़ लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगी, अच्छे से डिटेल में है। प्लस आपका आता है साइंस एंड टेक, वो करंट से कवर हो जाएगा मेंस 365। उसके अलावा बेसिक साइंस एंड टेक के लिए किसी भी कोचिंग की, मैंने वाजीराम का येलो बुक आता है साइंस एंड टेक का, वो पढ़ लिया था। किसी भी एक बुक पढ़ के आप पहले बेसिक नॉलेज बना लो, फिर आप कवर कर लोगे। देन कमिंग टू द और क्या रह जाता है, इन्वायरमेंट, वो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और करंट इन सब से ही मिक्स होके वो कवर हो जाता है। जैसे कि मान लो लैंडस्लाइड का क्वेश्चन आ गया, या फिर आपका जो है इस बार सैंड माइनिंग का क्वेश्चन था, तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं आपके ज्योग्राफी और उससे, और फिर आपको एक आइडिया भी हो जाता है मैप बना के कैसे आप इलस्ट्रेट कर सकते हो। सो दैट यू हैव टू थिंक। एथिक्स जो है वो सबसे इजी पेपर है, अगर आप रियली इस पे थिंक करते हो तो आप देखोगे सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा मार्क्स कंपेरेटिवली। हम पेपर 2 पेपर 3 पे कितना टाइम देते हैं, बट मार्क्स क्या मिलता है, पेपर 4 में कम टाइम देकर ज़्यादा मार्क्स अचीव किया जा सकता है। लेक्सिकॉन की बुक आती है, बहुत छोटी सी है, आधे में तो केस स्टडी है और आधे में आपकी बुक है। आप एक बार पढ़ जाएं नोवेल की तरह, दूसरी बार पढ़ के उसके नोट्स निकाल लें, हर टॉपिक के लिए एग्जाम्पल का जगह छोड़ दें, आप एग्जाम्पल लिखें, ठीक है, उसका गूगल करके उस टॉपिक से अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हर टॉपिक के लिए 2 या 3 एग्जाम्पल रेडी रखें, पब्लिक लाइफ से, हिस्टोरिकल लाइफ से, गांधी हैं, नेहरू हैं, या फिर नेल्सन मंडेला है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, ऐसे आपको एग्जाम्पल्स रखने होंगे, गौतम बुद्ध हैं, इस तरह से। और अगर आप देखेंगे कि अगर आपको करंट लाइफ से भी रखने होंगे, जैसे कि IAS IPS की लाइफ से या किसी पब्लिक लाइफ से, तो वैसे एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ पर्सनल लाइफ से भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स, और अगर आप टॉपिक आपका प्रिपेयर्ड है तो जस्ट दैट्स द थिंग, मीन्स आपका क्या है कि आपने डिक्शनरी डेफिनेशन कर लिया, प्लस एक एग्जाम्पल कर लिया, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिए, एथिक्स हो गया। अब केस स्टडी में आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि हाउ यू पुट दोज थ्योरीज एंड जो केस स्टडी में पूछा है उसको टुगेदर। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मतलब मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आप देखना कि मेरे एथिक्स के नोट्स में आप देखना कि देयर वर डिफरेंट वेज टू अप्रोच फॉर केस स्टडी। जैसे 6 केस स्टडी पूछते हैं, अगर मेरे पास 4-5 वे हों केस स्टडी को इनिशिएट करने का, तो मैं हर केस स्टडी का इंट्रो अलग तरीके से कर सकता हूँ। जबकि डिफरेंट, मैं लास्ट ईयर तक क्या करता था, मैकेनिकल इंट्रोडक्शन होता था मेरा कि दिस इज स्टेक होल्डर्स, दीज आर स्टेक होल्डर्स, दीज आर द इशूज इन्वॉल्व, एंड मैं इनिशिएट करता हर केस स्टडी में मैं वैसे ही इनिशिएट करता था। बट लास्ट ईयर आई मेड चेंजेस, लेट द मार्क्स कम देन आई कैन, मीन्स आई विल बी एश्योर्ड कि जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई वो सक्सेसफुल थी। अदरवाइज अगर कम मार्क्स आए होंगे तो इट मे हैव बीन बैकफायर्ड, सो दैट आई डोंट नो, बट इफ इट इज सक्सेसफुल आई हैव गॉट रैंक, सो आई थिंक somewhat it would have worked. That is the part of ethics. You have to revise. Also अगर कुछ लोग नए हैं तो माइकल सैंडल की एक वीडियो आती है, that you can watch. It's हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी 10 लेक्चर की वीडियो है। To start in ethics, it is a very good lecture. You must watch. जैसे प्रधानमंत्री और संविधान सीरियल जरूर देखना चाहिए तैयारी स्टार्ट करने से पहले, उसी तरह से एथिक्स के लिए माइकल सैंडल की लेक्चर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया है, यू मस्ट वॉच। फिर आप एथिक्स की लेक्सिकॉन पढ़ो, फिर अपने नोट्स निकालो, एग्जाम्पल्स रेडी करो, एंड दैट्स इट, केस स्टडी का अप्रोच आ जाएगा। सो these were the general strategy from the prelims point of view, mains point of view, बुक लिस्ट फिक्स हो गया। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे, छोटा सा है, स्ट्रैटेजी में कुछ नहीं करना है। अगर आप, ये सेकेंड पिलर है, आफ्टर फिक्सिंग बुक लिस्ट यू हैव टू फिक्स स्ट्रैटेजी। जो शेड्यूल में जब आएंगे तो मेन है शेड्यूल आपका कि आप अगर 21 का प्लान कर रहे हैं तो यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। आपके पास 10 महीने हैं, 27 जून को पेपर है, फरवरी तक आप मेंस का पढ़ें, जैसे ऑप्शनल, NCERTs, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर डिटेल में, उसके बाद आपके हो गए क्या एथिक्स,
वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब चीज़ें अगर आप फेब तक कवर कर लेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 3.5-4 महीने में आप अच्छे से प्रीलिम्स कर सकते हैं। हर नोट्स को 4 बार पढ़ना है, प्रीलिम्स वाले नोट्स को, बुक्स को, जो भी आप फॉलो करते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज़ देनी है। कम से कम 60 टेस्ट दें, अपने आप को एसेस करें, रोज़ एक टेस्ट दें। मैं अपनी बात बताऊं, रोज़ एक टेस्ट देता था, रोज़ इन एग्ज़ाम टाइम सेटअप। पूरा 1.5 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन करना है, आधे घंटे रिजर्व रखता था टू फिल द OMR, बट मैं OMR फिल करता नहीं था तो वो टाइम बच जाता था। बट यू हैव टू प्रैक्टिस OMR ऑल्सो फॉर द न्यूबी, आई वुड सजेस्ट। और CSET का भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस अगर आप अभी फेब तक कर लेंगे तो फिर मार्च अप्रैल में आप जो एप्टीट्यूड वाला जो सेकेंड पेपर है CSET का, उसको आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे बाय गिविंग द टेस्ट। तो ये ओवरऑल आपको शेड्यूल, एक लॉन्ग शेड्यूल बनाना पड़ेगा। फिर आती है रूटीन। बुक लिस्ट फिक्स हो गई, शेड्यूल फिक्स हो गई, यू हैव टू फॉलो अ रूटीन, सर्टेन रूटीन, डेली रूटीन। इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इट शुड नॉट मिस। वहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। एटलीस्ट आपका जो रूटीन होना चाहिए ना, वो आवर बेस्ड नहीं होना चाहिए, इतने घंटे पढ़ूंगा रोज, नहीं। आपका होना चाहिए कि आपकी बुक लिस्ट फिक्स है तो नंबर ऑफ पेजेस भी फिक्स हैं, आपकी रीडिंग स्पीड भी फिक्स है। यू डिवाइड, सपोज आप 70 पेज पढ़ते हो पर डे और 4000 पेज पढ़ना है, divide 4000 pages with 70, whatever the number of days comes, that will be the days you are going to finish the whole syllabus. Then in second division it will take less time, then in third division it will take or more less time. तो ये आपका जो है नंबर ऑफ पेजेस के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे, तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल था। और एग्ज़ाम में आपको डेडिकेशन चाहिए, कंटिन्यूअस मोटिवेशन चाहिए। मैं भी डिमोटिवेट होता था, मैं भी फिर से करने के लिए होता था। तो आप घर परिवार के साथ, जो लोग आपको पॉजिटिव न्यूज़ सुनाते हैं, जो लोग आपको ऑलवेज पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं, उनसे ही बातें करिए। जो लोग आपको निगेटिवली डिमोटिवेट करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। जब भी आप लो फील करें और कुछ करने का मन ना करें, तो बेस्ट थिंग है जो आपकी हॉबी है वो फॉलो कीजिए, या फिर थोड़ी देर सो जाइए। So I think that's all from the GS and for the prelims and mains point of view regarding the GS strategy from my side. Thank you all. Namaste. Jai Hind, Jai Bharat.